একটি বিশেষ ঘোষণা, ইনশাল্লাহ হযরত মাওলানা সুমিত আজিম রহমতুল্লাহ 10 দিনের বাৎসরিক উরসেকুল ইনশাল্লাহ 18 ডিসেম্বর 2020 শুক্রবার থেকে 27 ডিসেম্বর 2020 রবিবার পর্যন্ত ইনশাল্লাহ চলবে। যেহেতু এবছর জমায়েতের উপর, জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে, সেই কারণে সমস্ত অনুষ্ঠান ইনশাল্লাহ ইউটিউবে দেখানো হবে। সমস্ত পীর ভাইদের কাছে অনুরোধ, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট জমায়েত করে এই অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা, যাতে নিজ নিজ এলাকার সকলে এই অনুষ্ঠান দেখতে পায় এবং উপকৃত হয়। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যেখান থেকে এই মজলিসে যেভাবেই সামিল হবে ইনশাল্লাহ একই ফয়েজে বরকত পাবেন। ইউটিউব যে লাইভ হবে, সেই লাইভ প্রচারের সময়সূচিটা আমাদের ভারতীয় সময় অনুযায়ী বলা হচ্ছে। সারা বিশ্বের যেখানে আছেন এই সময় অনুযায়ী, ভারতীয় সময় অনুযায়ী এটাকে ফলো করবেন মেহরবানি করে। 18 ডিসেম্বর শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে উরসেকুল সকাল 11টা থেকে শুরু হবে। তারপর জুম্মার নামাজ হবে। জুম্মার নামাজের পরে 1:30 মিনিট থেকে মাজার শরীফ জিয়ারত শুরু হবে। আর ওই দিন রাত 7টা থেকে মজলিস শুরু হবে, বয়ান হবে, উরসেকুল হবে। রাত্রি 9:30 থেকে 10টার মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ হবে। 19 ডিসেম্বর শনিবার সকাল 10টা থেকে মজলিস শুরু হবে, বয়ান হবে, উরসেকুল হবে এবং 12:30 মিনিট পর্যন্ত ইনশাল্লাহ চলবে। তারপর রাত 7টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং 9:30 থেকে 10টা পর্যন্ত চলবে। জি, রাত 9:30 থেকে 10টা পর্যন্ত শেষ হবে আর জি। 20 ডিসেম্বর রবিবার সকাল 9টা থেকে ইনশাল্লাহ মজলিস শুরু হবে এবং একটানা 1:30টা পর্যন্ত চলবে। সকাল 9টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং একটানা 1:30টা পর্যন্ত মজলিস চলবে। তারপর রাত 7টা থেকে শুরু হবে, মজলিস শুরু হবে এবং রাত 9:30 থেকে 10টার মধ্যে ইনশাল্লাহ মজলিস শেষ হবে। 21 ডিসেম্বর সোমবার থেকে 24 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল 10টা থেকে 12:30 পর্যন্ত মজলিস চলবে এবং রাতে 7টা থেকে 9:30 10টার মধ্যে মজলিস চলবে ইনশাল্লাহ। 25 ডিসেম্বর শুক্রবার জুম্মার আগে উরসেকুল হবে। জুম্মার নামাজের পর 1:30টা থেকে 8 মশলার বয়ান শুরু হবে। আর রাতে 7টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং 9:30 থেকে 10টা পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ। 26 ডিসেম্বর শনিবার মাজার শরীফ জিয়ারত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে, তবে ইউটিউবে দেখানো হবে সকাল 8টা থেকে 9:30 পর্যন্ত এবং 1:30 মিনিট থেকে 2টো পর্যন্ত এবং 4টে থেকে 4:45 মিনিট পর্যন্ত। এই দিন যারা পারবেন একটা নফল রোজা রাখবেন মেহরবানি করে। আর ওই দিন সকাল 10টা থেকে বয়ানের মজলিস শুরু হবে ইনশাল্লাহ। সকাল 10টা থেকে চলবে জোহর পর্যন্ত এবং জোহরের পরে আবার চলবে আসর পর্যন্ত ইনশাল্লাহ। 27 ডিসেম্বর রবিবার সকাল 9টা থেকে মজলিস শুরু হবে, আখরি মোনাজাত। সকাল 9টা থেকে মজলিস শুরু হবে, 1:30টা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ চলবে। সকাল 9টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং 1:30টা পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ। এই সময়সূচি অনুযায়ী ইনশাল্লাহ লাইভ প্রচার হবে। এই মেসেজটি সমস্ত পীর ভাইদের কাছে, সমস্ত লোকের কাছে পৌঁছানো আমাদের সকলের দায়িত্ব। এটা আমি এর মধ্যে যত ফেসবুকেও ছাড়া হবে, হোয়াটসঅ্যাপেও ছাড়া হবে, আপনারা সেগুলো প্রিন্ট করে হাতে হাতে দিতে পারেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে এগুলো যাতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছায়, আমরা সকলে মিলে ইনশাল্লাহ সেই চেষ্টা করব। 10 দিনের এই সালানা উৎসবগুলো উপলক্ষে যে যার এলাকাতে বা গ্রামে যাদের হালাল পয়সা আছে, কোনো রকম সুদ, ঘুষ, এলআইসি, বন্ধক, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত নেই, 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত ওজিফা পাবন্দির সঙ্গে পড়েন, কালাম পাকে নুরানি ওজিফা পড়েন, তারা মিলিতভাবে তাবারুক করতে পারবেন। প্রথম শুক্রবার রাতে এবং শেষ রবিবার দিনের বেলা তাবারুক করতে পারেন। এছাড়া যাদের সামর্থ্য আছে তারা 10 দিনও করতে পারেন, দিনে অথবা রাতে, যার যখন সুবিধা হবে, যারা যেভাবে পারেন করতে পারেন, দিনেও করতে পারেন অথবা রাতেও করতে পারেন, যাদের যেরকম সুবিধা হবে। তবে প্রথম শুক্রবারটা রাতে হবে এবং শেষ রবিবার দিনের বেলা তাবারুক হবে। যেহেতু দিনের বেলা 1:30টার মজলিস শেষ হবে, তারপরে ওই দিনে আর রাতে কোনো মজলিস নেই ইনশাল্লাহ। এইভাবে আমাদের এই মজলিস চলবে। আপনারা সকলে মেহরবানি করে এটা প্রচার করার চেষ্টা করবেন। ইউটিউব আমাদের চ্যানেল হচ্ছে হাক্কানি আঞ্জুমান কলকাতা।
আর ফেসবুক হচ্ছে হাক্কানি আঞ্জুমান অফ সুফি আজনগাছি রহমতুল্লাহ। এই ফেসবুকে এবং হোয়াটসঅ্যাপে আজকে ইনশাল্লাহ ছাড়া হবে, আপনারা মেহরবান করে যে যার মতো করে প্রচার করবেন। মানসা উর্দু बोले हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, दिन में रात में कभी हाँ 27 मंडे सैटरडे संडे मंडे गलत के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इत्तला सालाना उर्सुकुल मजलिस के लिए तमाम लोगों को दी जाती है। मेहरबानी करके इसे गौर से सुनें और उसी के मुताबिक जहाँ तक हो अमल करने की कोशिश करें। हम लोग का ये सालाना उर्सुकुल मजलिस इस मरतबा 2020 सालाना उर्सुकुल मजलिस जो शुरू हो रही है वो 18 दिसंबर जुमे के दिन से 18 दिसंबर जुमे को 11 बजे उर्सुकुल मजलिस होगी जुमा के पहले तक, और फिर 1:30 बजे मज़ार शरीफ की ज़ियारत होगी, और फिर 7 बजे शाम को उर्सुकुल मजलिस 9:30 से 10 के बीच में ख़त्म कर दी जाएगी। फिर 19 तारीख़ शनिचर के दिन 10 बजे मजलिस शुरू होगी, 10 बजे से 12:30 शनिचर के दिन 10 बजे से लेकर 12:30 तक मजलिस चलेगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे से उर्सुकुल मजलिस शुरू होगी और 9:30 से 10 के बीच में फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर 20 दिसंबर इतवार के रोज़ वो चूँकि माहवारी मजलिस भी है, सालाना मजलिस भी, इसलिए 10 बजे से मजलिस शुरू होगी, फिर वो 12:30 तक चलेगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद 7 बजे शाम को उर्सुकुल मजलिस शुरू होगी और 9:30 से 10 के बीच में फिर ख़त्म हो जाएगी। यही 20 दिसंबर को अनमोल रतन मुबारक की ज़ियारत भी है, अनमोल रतन मुबारक की ज़ियारत भी है और तबरुक भी है। फिर 21 दिसंबर सोमवार के रोज़ 10 बजे सुबह से मजलिस शुरू होगी, 12:15 तक या 12:30 बजे तक मजलिस चलेगी। फिर उसके बाद नमाज वगैरह है, ज़ोहर की नमाज है। 7 बजे शाम को 21 दिसंबर सोमवार के दिन 7 बजे शाम उर्सुकुल मजलिस शुरू होगी इशा की नमाज के बाद, और 9:30 से 10 के बीच में इंशाअल्लाह मजलिस ख़त्म हो जाएगी। फिर 22 दिसंबर मंगल के रोज़ 10 बजे सुबह से इंशाअल्लाह मजलिस शुरू होगी, 12:30 तक चलेगी। फिर नमाज ज़ोहर है। फिर 7 बजे शाम को यहाँ के कलकत्ता में इशा की नमाज के बाद 7 बजे शाम से रात से फिर मजलिस शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे तक इंशाअल्लाह ताला मजलिस ख़त्म हो जाएगी। फिर 22 दिसंबर बुध के रोज़ 23 दिसंबर बुध के रोज़ 10 बजे सुबह मजलिस शुरू होगी और 12:30 तक मजलिस चलेगी। फिर शाम के वक्त में रात 7 बजे बाद नमाज इशा, यहाँ के मुताबिक इशा की नमाज 7 बजे उर्सुकुल मजलिस शुरू होगी और 10:30 बजे के 10 बजे के अंदर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। फिर 24 दिसंबर जुमरात के रोज़ 10 बजे सुबह मजलिस शुरू होगी, 12:30 तक ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जुमरात बृहस्पतिवार। फिर शाम को रात में 7 बजे उर्सुकुल मजलिस शुरू होगी और 10 बजे के करीब इंशाअल्लाह मजलिस ख़त्म हो जाएगी। फिर 25 दिसंबर फ्राइडे यानी जुमे के रोज़ 11 बजे जुमे से पहले मजलिस उर्सुकुल होगा, और फिर उसके बाद जुमा की नमाज़ पढ़ी जाएगी, और 1:30 बजे फिर जुमे की नमाज के बाद 8 मसले का बयान किया जाएगा। जुमे के बाद 1:30 बजे करीब जुमे 8 मसले का बयान होगा, जो हमेशा जैसे
रवायतन चली आ रही है उसी तरह से। फिर रात के वक्त में 7 बजे उर्स-ए-कुल मजलिस होगी और 10 बजे के अंदर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। फिर 26 दिसंबर शनिचर के रोज़ जो मज़ार शरीफ की ज़ियारत का दिन है, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, माने 1.5 घंटा, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक मज़ार शरीफ की ज़ियारत होगी। फिर दूसरी शिफ्ट 10 बजे से उर्स-ए-कुल मजलिस फिर शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे तक मज़ार शरीफ की ज़ियारत और उसके बाद 10 बजे से उर्स-ए-कुल मजलिस शुरू होगी। फिर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच, माने आधे घंटे के लिए फिर मज़ार शरीफ की ज़ियारत रखी गई है। और फिर तीसरी शिफ्ट 4 बजे शाम से 4:45, सिर्फ 15 मिनट, 4 बजे से 4:45 ना, पौन घंटा, तकरीबन पौन घंटे के लिए मज़ार शरीफ की ज़ियारत रखी गई है, यानी मगरिब की नमाज से जस्ट पहले तक। पीपल कैन फास्ट। इस रोज़ क्या है कि लोग मज़ार शरीफ की बरकत हासिल करने के लिए, फयूज़ हासिल करने के लिए एक नफल रोज़ा रख कर के ज़ियारत करें। जैसे नफल रोज़ा रख कर के लोग यहाँ आकर के मज़ार शरीफ की ज़ियारत किया करते थे, तो चूँकि जो अभी कोविड-19 वाला मसला है, लॉकडाउन का मसला अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इसके पेश नज़र और गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए हम लोगों ने, यानी हक्कानी अंजुमन दरबार ने इस चीज़ का एहतमाम, सालाना उर्स-ए-कुल मजलिस का एहतमाम किया और उसी हिसाब से ये प्रोग्राम सजाया गया है। उसके बाद रोज़ा रहेंगे और शाम के वक्त में फिर जैसे इफ्तार का जो टाइम है, अपने अपने जगह, अपने अपने इलाके के मुताबिक, जैसे सूरज जो गुरूब होने का टाइम जितना है उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे, आसानी के साथ टाइम निकल आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और वही टाइम जो है, वजह इसकी ये है कि कोई साहब हैं तो 7 मिनट रुकते हैं, कोई है तो 9 मिनट रुकते हैं, कोई 5 मिनट रुकते हैं सूरज डूबने के टाइम से। लेकिन तक़वे के पेश नज़र और शरीयतन और अहादीस की रोशनी में, जैसा कि मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो बताया है, वह यही वजह है कि कुछ थोड़ी ताख़ीर दूसरों की बनिस्बत समझी जाती है, लेकिन वो ताख़ीर नहीं है, दर हकीकत वो एक्चुअल टाइम वही होता है। तो 15 मिनट अगर रुक जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 5 बजे सूरज डूब रहा है तो उसमें 5:15 पूरे 15 मिनट अगर जोड़ते हैं तो 5:15 में जाकर हमारा इफ्तार का भी टाइम होता है और नमाज मगरिब का भी टाइम हो जाता है। तो मगरिब की नमाज से जस्ट पहले मैंने इफ्तार करें और नमाज अदा करें। फिर 27 दिसंबर जो आखिरी रोज़ है, इतवार के दिन, उस रोज़ मज़ार शरीफ की ज़ियारत नहीं है, बल्कि 9 बजे से, सुबह 9 बजे से मजलिस इंशाल्लाह शुरू होगी और 1:30 बजे तक वो मजलिस चलेगी। उस रोज़ तबर्रुक का भी इंतज़ाम है और उसके साथ अनमोल रतन मुबारक की ज़ियारत भी है, दादा पीर की मुनाजात मजलिस भी है और हज़रत मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो मनक़बतें हैं, उर्दू और फ़ारसी, अरबी, बंगला, जितनी भी तरह से हैं, वो सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ मनक़बत भी पढ़ी जाएगी उसी बयान में। और उसके बाद अनमोल रतन मुबारक की ज़ियारत होकर के 1:30 बजे और फिर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तबर्रुक अपने अपने एरिया में होगा। तबर्रुक का मसला जहाँ तक है, जैसा कि इसमें फेसबुक में या यूट्यूब में आप लोग जैसा कि देखेंगे, इस तरह का जो वो छपा हुआ है ऐसे करके, तो ये उर्दू में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन ये अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, 4 लैंग्वेज में ये हो चुकी है। इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, अच्छा हिंदी भी हो गया ना, हाँ 3 लैंग्वेज में, सिर्फ उर्दू बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो भी कर दिया जाएगा। और अपने अपने इलाके में जिस तरह से भी लोग चाहें, चाहे 2 रोज़ कर लें, पहले दिन जैसे तबरुक के लिए है या संडे में तबरुक के लिए है, फिर उसके बाद आखिरी रोज़ तबरुक का इंतज़ाम है। क्योंकि दूर दराज वहाँ तक, क्योंकि अभी दरबार में आने का सिलसिला है नहीं और बहुत ही मखसूस और मुख्तसर तादाद में लोग जो है हाजिर होने के लिए परमिशन दिया गया है। इसलिए जहाँ जहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर में, चाहे वो बॉम्बे में हो, राजस्थान में हो, या बिहार में हो, या यूपी में हो, या और दूसरे, या बंगाल के दूसरे एरिया में हो, दिनाज 24 परगना
साउथ या नॉर्थ या फिर मिदनापुर, वेस्ट, बांग्लादेश, तमाम जगहों पे, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ भी लोग हैं वजीफ़ा पढ़ने वाले, इंग्लैंड, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने अपने वक्त के हिसाब से, अपनी सहूलत के एतबार से वहाँ पर चाहे 1 रोज़ तबरुक करें, 2 रोज़ करें, चाहे 10 रोज़ कर लें, एक टाइम कम से कम कर सकते हैं। तो अगर, लेकिन शर्त वही है कि वही लोग इसमें शरीक होंगे जो 5 वक्त नमाज की जिनकी पाबंदी है, क़ज़ा नहीं करते, और दूसरे वजीफ़ा जिनकी क़ज़ा नहीं होती, वजीफ़ा पढ़ते हैं, साथ ही साथ जिनकी रोज़ी हलाल है, किसी किस्म का भी सूद से कोई लेन देन नहीं है, सूद से पाक साफ़ उनका मामला है, और कोई हराम रोज़ी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैंक अकाउंट में अगर वो जैसे ये इंटरेस्ट वगैरह का मामला है, जब तक कि वो क्लियर नहीं कर लेते हैं इस मामले में वो शरीक नहीं हो सकते। जब पूरी तरह से उनका क्लियरेंस हो जाएगा तब जाकर वो तबरुक में, जो जितने भी पीर भाई लोग जो तबरुक का इंतज़ाम करने वाले हैं उसमें वो शरीक हो सकेंगे। अदरवाइज़ कोई भी आदमी जानबूझ करके ना तो शरीक करे और ना खुद से शरीक हों। ये अच्छी तरह से, आप अगर अंधेरे में रख करके शरीक हो गए और लोगों को आपने नहीं बताया तो उसकी मुसीबत जो होगी वो आपके ऊपर, वो आप समझेंगे। फिर ये जिम्मेदारी दरबार जो है नहीं लेता इसकी। ये इस चीज़ को अच्छी तरह से आप रखेंगे। ये नहीं कि शौक़ के मारे बहुत हुआ तो हम लोग 10 रोज़ कर रहे हैं अपना, अब उसमें हर किसी से लेने लगे, आम कलेक्शन, जनरल कलेक्शन, बिल्कुल नहीं। हम एक टाइम खिलाएं, चाहे हम 2 दिन खिलाएं, लेकिन जिस तरह से दरबार में खिलाया जाता है, जो तरीका है, हलाल पैसा, सूद से पाक साफ, बैंक इंटरेस्ट से अलग थलग हो करके, और अगर किसी का निकलता है तो वो गोश्त ख़रीद के खुद भी अपने तौर पर वो गोश्त ख़रीदें, चील कौवों को वो खिलाएं। बेहतर है कि अपनी छत पर अगर वो खिलाते हैं तो उनके लिए और बेहतर है, वो उनका कफ़ारा है। और बवजह मजबूरी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी से कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त फिर दरबार जो है उसके लिए इंतज़ाम इंशाअल्लाह ताला कर देगा। ये दरबार की मदद है उसकी, उनके लिए। तो इस तरह से तमाम लोग इसमें शरीक हो सकते हैं और बरकत जो है 10 रोज़ सालाना उर्स कुल की बरकत इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो तमाम जो प्रोग्राम यहाँ से जो ये पब्लिश होगी, तमाम प्रोग्राम जो टेलीकास्ट किया जाएगा, इसका एक यूट्यूब है, उसमें है हक्कानी अंजुमन कोलकाता, हक्कानी अंजुमन कोलकाता यूट्यूब में आप देख सकते हैं। और फेसबुक अगर चलाते हैं तो उसमें हक्कानी अंजुमन ऑफ सूफ़ी अजान गाछी साहेब R_A_ मीन्स रहमतुल्लाह अलैह, ये फेसबुक का है। ये हक्कानी अंजुमन की तरफ से ये ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो बयानात जो भी होंगे, जो भी होगा, उसको अच्छी तरह से उम्मीद है कि उसके फैज़ व बरक़ात हम तमाम लोग हासिल कर सकें। सारे जहान में ये जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला दिखाया जाएगा और लोग उससे अपने अपने तौर पर जो जहाँ है। हाँ, ख़ास बात यह है कि जैसे यहाँ पे वजीफ़ा पढ़ाया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे वज़ू के साथ नफिल नमाज पढ़ करके लोग शरीक होते हैं, इंशाअल्लाह ताला अपने अपने जगहों पे अगर 10 आदमी, 20 आदमी और 100 आदमी के करीब एक जगह जमा हो गए, औरतों को भी आप एक साइड में रख सकते हैं, वहाँ पे मर्द को एक साइड, औरतों को एक साइड, और उस जगह में उन सबों को अगर ये इस तरह से वजीफ़ा में शरीक हो रहे हैं, वजीफ़ा में शरीक हो करके वैसे ही नफिल नमाज के साथ वज़ू के साथ रहें, फिर 2 रकत नमाज नफिल की पढ़ लिया शुरू में और मजलिस के ख़त्म होने के बाद फिर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुआ में भी वैसे ही शरीक रहें जिस तरह यहाँ पे दुआ होती है, इन सारे आलम के लिए दुआ होती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे फयूज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। ये बहुत ही बेहतर तरीक़ा मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को जो जारी कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।